Good afternoon, all dear students. In last lecture, we had learned washing soda and their properties and uses. Okay. Today, I am going to teach you radioactive substance. Let's see in detail what are radioactive substance. So, students, radioactive जो substance होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो बहुत ही हाई होता है और ये जो एलिमेंट होते हैं उनसे जो एनर्जी मिलती है हमें वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब ये जो सब्सटेंस होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करते हैं, इमिट करते हैं। जैसे कि एलिमेंट विथ ए हाई एटॉमिक नंबर सच एज अ यूरेनियम, thorium, radium have a property of spontaneous emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होता है उनको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे कि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, उसको इनको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is unstable and radiation occur from the unstable nucleus. Radioactive substances are relevant to our day-to-day life. However, before going further, let us learn something more about this substance. तो ये सब्सटेंस के बारे में हम अभी थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो देखो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर गिवन आउट बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। दीज आर अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो 3 टाइप के जो रेडिएशन से हमें ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से मिलते हैं। उसमें पहला जो रेडिएशन होता है वो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज होता है। ठीक है, तो देखो अभी इधर एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्लोरस वॉज स्टडिंग पिच ब्लेंड अ कंपाउंड ऑफ यूरेनियम। उसने यूरेनियम का स्टडी किया था। ओके, ही हैड केप्ट सम अनयूज्ड photographic plates in a cardboard box in a drawer. A key was lying on the box. He happened to leave the uranium compound on it. After a few days, he washed the plates only to find that the plates were cloudy and show the shapes of the key. As these incidents occur in the dark, backward infers that the uranium compound might be emitting from their interior rays like X-ray which penetrate the substance. These rays were called Becquerel's ray, and after a few days, Madame Curie discovered the similar property in compounds of thorium. Okay, तो फिर कुछ दिनों के बाद ये जो मैडम क्यूरी थे उन्होंने ये डिस्कवर किया, ऐसा प्रॉपर्टी डिस्कवर किया कि जो बेक्वेरेल्स रे ने डिस्कवर की थी। ठीक है, थोरियम की प्रॉपर्टी उसने डिस्कवर्ड की थी। तो देखो अभी जो नेचर होता है, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन का, तो उसमें हम देखेंगे In 1889, Rutherford discovered that radiation emitted by the radium were of 2 types. जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था 1889 में। जो रेडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं, किसकी वजह से इमिटेड होते हैं? रेडियम के वजह से। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस। विलार्ड्स डिस्कवर्ड द third types, namely gamma radiations. Okay, when these rays are allowed to pass through 2 opposite charge plate, they get separated. This method was introduced by Rutherford in 1902. Rutherford and Villard studied the radiation emitted by the radioactive substance. For this purpose, the rays were allowed to pass through an electrical field and photographic plate was held in their path. It was found that the radiation was divided into 3 types. One type of radiation derives slightly towards the negative charge plate, while the second type of radiation diverted substantially towards the positively charged plate. However, the third type of radiation did not
divides at all in the electrical field. The rays which divided slightly towards negatively charged plate are called alpha rays. The ray which divided slightly towards negatively charged plate are called the alpha rays, and those which divide substantially towards the positively charged plate are called beta rays, and those which do not divide it at all आर कॉल्ड गैमा रेज. ठीक है, जो निगेटिव चार्ज में डिवाइडेड होते हैं उनको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और जो पॉजिटिव चार्ज में डिवाइडेड होते हैं तो उनको बोलेंगे बीटा, और जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में नहीं डिवाइड होते तो उनको बोलेंगे गैमा रेज. तो देखो, देयर इज अ अल्फा एंड बीटा गैमा रेज रेडिएशन सब्सटेंस स्लिट ब्लॉक दिया है, स्लिट दिया है, और इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट भी दिया है, जिंक सल्फेट कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट भी दिया है. ठीक है. एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट अर्नेस्ट रुदरफोर्ड 1871 एंड 1937, a scientist from New Zealand did research on radioactivity under the guidance of J.J. Thomson at Cavendish Laboratory at Cambridge and McGill's University, Canada. He shows that the nitrogen atom could be split by bombarding it with the alpha particles. This experiment ushered in a new era in the field of physics. So there is a chart, students. See this chart very carefully. Characteristic of alpha, beta and gamma rays. Name current of alpha particles, current of beta पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये चार्ट आप लोगों को पढ़ना है. इनके कैरेक्टर्स दिए हैं, वो कैसे पेनिट्रेट होते हैं, डेविएशंस क्या होता है, चार्ज, वेलोसिटी, मास, नेचर क्या होता है, आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, उनके प्रॉपर्टीज़ दिए हैं, उनका पावर ऑफ प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस क्या होता है, और इनके हिसाब से अल्फ़ा रेज में क्या होता है और गामा रेज में क्या होता है ये दिया है. ठीक है. नाउ यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. अभी यूजेस देखेंगे. इट इज़ misconceptions that radioactive elements are used only for making an atom bombs. ऐसा मिसकंसेप्शन हुआ है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ सिर्फ एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज scientific research, agriculture, industry, medicines, etc. Radioactive substances are used in two ways: by using the radiations alone, by using the radiation element itself. Okay. अभी देखो natural radioactivity क्या होता है. Generally, the elements with atomic number from 82 to 92 are found to radiate spontaneously in nature. These are called natural radioactive elements. और artificial radioactive elements किसको कहा जाता है? The couple Frederick Joliot Curie and Irene Joliot Curie first invented induced radioactivity. The radioactive active elements produced in the nuclear fission processing brought about in laboratory by bombardment of particles are called artificial radioactive elements. They were awarded the Nobel Prize in 1935 for this invention. ठीक है. अभी radioactive isotopes and use in various fields are follows. ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. उसके पहले मैं आप लोगों को ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. ल्यूमिनस मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ल्यूमिनस मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट. फ्लोरोसेंट वो मटेरियल होते हैं जिन पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने पर वो उसे एब्जॉर्ब करके ग्लो करने लगते हैं, और इसका एग्जाम्पल है करेंसी नोट पे लगी हुई मैग्नेटिक स्ट्रिप जो कि यूवी लाइट पड़ने पर ग्लो करने लगती है.
फॉस्फोफ्लोरेसेंट वो मटेरियल हैं जिनको थोड़ी देर लाइट सोर्स के पास रखकर अगर सोर्स को हटा दें तब भी वो ग्लो करते हैं, जैसे कि हमारी रेडियम वाली वॉचेस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हेनरी बैक्यूरेल की, जो विलियम रॉजेंटन के हाल ही में हुए एक्सरेज की खोज वाले एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स को ब्लैक पेपर में लपेटकर उसके ऊपर फॉस्फोफ्लोरेसेंट मटेरियल को रखकर उसका इफेक्ट प्लेट पर चेक किया। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ किया और रिजल्ट तब तक निगेटिव रहा जब तक यूरेनियम सॉल्ट का यूज़ नहीं हुआ। जब हेनरी ने यूरेनियम का यूज़ किया तो उन्होंने पाया कि फोटोग्राफिक प्लेट जो कि एक ब्लैक पेपर से लपेटी हुई है, काली पड़ गई। कुछ समय तक तो हेनरी को भी फोटोग्राफिक प्लेट के काले होने का रीज़न समझ नहीं आया, पर यूरेनियम के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि यूरेनियम से इनविजिबल या ना दिखने वाली रेस निकलती हैं। हेनरी ने इन अननोन रेस को बैक्यूरेल रेस का नाम दिया। इन्हीं दिनों मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी भी इसी सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने यूरेनियम के अलावा पोलोनियम और रेडियम जैसे एलिमेंट्स में भी ये प्रॉपर्टी देखी और इस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है और इसके हमारे लिए क्या यूजेस हैं। अगर मैं आपको रेडियो एक्टिविटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक न्यूक्लियर फेनोमेना है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस से पार्टिकल का स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है स्टेबल न्यूक्लियस को पाने के लिए। यहाँ स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब है कि ये रेस अपने आप निकलती हैं बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के। रेडियो एक्टिविटी में मेनली 3 टाइप के डिके होते हैं। पॉजिटिव, जिसको अल्फा, नेगेटिव को बीटा और न्यूट्रल को गामा डिके कहा जाता है। चलिए पहले बात करते हैं हम अल्फा डिके की। जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की और एटॉमिक वेट में 4 की कमी आ जाती है, जो कि एक हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल है। इसलिए इसे हीलियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं उसे पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि इस केस में यूरेनियम है, और जो नया न्यूक्लियस बनता है उसे डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि इस केस में थोरियम है। अब बात करते हैं बीटा डिके की। जब किसी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज हो जाता है, पर उसके एटॉमिक वेट में कोई चेंज नहीं होता और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा डिके है गामा डिके। जब किसी न्यूक्लियस से गामा रेज निकलती हैं तो उसके न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्सेस होती हैं, पर इनके निकलने से न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। गामा रेज बहुत ही डेंजरस होती हैं। ये स्किन बर्न, कैंसर, यहाँ तक कि आपके डीएनए में भी चेंजेस कर सकती हैं। अगर आपने हल्क मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें गामा रेज का ही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। हल्क के डीएनए में चेंज गामा रेज की वजह से ही हुआ था। अब क्वेश्चन ये है, हम कैसे जानेंगे कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एटॉमिक नंबर 80 के ऊपर सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर 80 से कम है और वो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स का पता हम स्टेबिलिटी बेल्ट देखकर लगाते हैं। स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में मैं आपको किसी और लेसन में बताऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि रेडियो एक्टिविटी का यूज़ क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूज़ बहुत ज़्यादा वाइड हैं, फिर चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या क्लीन एनर्जी बनाने की बात, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ का यूज़ करके हम अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की एज बता सकते हैं। हेनरी बैक्यूरेल की लैब में शुरू हुआ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फ्यूचर पर इतना बड़ा प्रभाव डालेगा कोई नहीं जानता था। तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और कुछ नया करने की कोशिश करते रहिए। क्या पता आज आपका एक छोटा सा स्टेप फ्यूचर को बदल के रख दे। अब आज का एक अमेजिंग फैक्ट। आशा है आपने इस लेसन से कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम। This was our today's lecture, student. I hope you understood. Thank you. Bye bye.